شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں آج بعد نماز جمعہ مختلف تنظیموں کی جانب سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کے خلاف شدید احتجاج درج کرایا گیا۔ دارالشفا کی جامع مسجد سے درسگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے بعد نماز جمعہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کے خلاف احتجاج درج کرایا گیا۔ دوسری طرف سعید آباد عیدگاہ اجالہ شاہ کے روبرو بھی مختلف تنظیموں کی جانب سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کے خلاف احتجاج درج کرایا گیا۔ مظاہرین نے سرکار کے اس قانون کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ایکٹ وقف پراپرٹی پر غیر انصافی قبضے کو جائز بنانے کی کوشش ہے اور مسلم اوقاف کے اداروں کو کمزور کر رہا ہے۔ انہوں نے اس ایکٹ کو فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے پیش نظر شہر کے مختلف علاقوں میں آج پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ مسلم تنظیموں اور مذہبی رہنماؤں نے اس ایکٹ کی مذمت کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ شہریان حیدرآباد کی جانب سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پرامن احتجاج درج کرایا گیا۔ پیش ہے اس خصوص میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات میں جاری احتجاج کے کچھ جھلکیاں اور ساتھ ہی مظاہرین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھا ٹھہرو۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ درسگاہ جہاد و شہادت و جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش کی جانب سے آج شہر کے اندر مختلف مساجد کے پاس وقف ایکٹ کے خلاف شعور بیداری رکھا گیا ہے۔ اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس سیاہ قانون کے بارے میں واقف کروایا جائے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جائیداد کو کھینچنا چاہتی ہے حکومت، اور وہ یہ حکومت ہے جو آئے دن مسلمانوں کے خلاف نت نئے قانون کے تحت ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اور انہی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قبرستان بھیج دیں گے یا مسلمان کو اس ملک سے باہر کریں گے، اور ایسا ایک مذاق کیا جاتا کہ ان کی زمینوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ کیسے ہم ان کے اعتماد کریں؟ اور یہ وہ قوم ہے جو آئے دن قرآن کی بے حرمتی پہ آمدہ ہو جاتی، مساجد کو ڈھانے کے در پہ ہوتی ہے، اور ان کے وہ لوگ پارلیمنٹ کی بڑی ایوانوں میں بیٹھ کے مسلمانوں کے جو خون کی ہولی کھیلے ہیں ان کو اس تخت دار پہ بٹھایا جاتا ہے۔ تو درسگاہ جہاد و شہادت اس بل کی مخالفت کرتی ہے، اس بل کو ٹھوکر مارتی ہے، اس ایکٹ کو نامنظور کرتی ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ بل واپسی تک احتجاج جاری رکھیں گے۔
आज हम यहाँ पर ये एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये हमारा मुतालबा ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, वक्फ एक्ट जो बनाया गया है, इसको वापस लिया जाए। ये जद्दोजहद किसी कौम किसी तबके के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत से मुतालबा करती है कि जो ये जालिमाना वक्फ एक्ट लाया गया है जिससे कि मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज़ खतरे में पड़ गए हैं और जो गरीब मुसलमान हैं जो उनको मराहत हासिल थे वो उनसे छिन जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ये बिल वापस ले ली। हमारा एहतजाज पुरअमन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक अपना सर्कुलर जारी किया है 2 दिन पहले। उन्होंने 11 नकात एक रोड मैप बनाया है जिसके तहत उन्होंने तमाम सिटीज़ में इसका एहतजाज होगा और ख़वातीन इसमें शरीक होंगे। इसमें सोशल मीडिया के तहत प्रोग्राम्स होंगे। इस जुमा से अगले जुमा तक एक वक्त बचाओ मुहिम मनाई जा रही है जिसमें अपील की गई है कि ह्यूमन चेंज फॉर्म किए जाए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ट्रैफिक को हम रोक नहीं रहे हैं, हम अपना सिर्फ पीसफुल तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि वक्फ एक्ट को वापस लिया जाए क्योंकि ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। और इंशाअल्लाह हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताबे हैं, जो भी वो फैसला करेगा। अभी तो उन्होंने 3 महीने का ऐलान किया है, 3 महीने के बाद इंशाअल्लाह इसका जायज़ा लेकर फिर वो फैसला करेंगे आगे का। हम हिंदुस्तान के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म के ताबे हैं, उनके साथ खड़े हैं। जैसे वो फैसला करेंगे हम पुरअमन तरीके पर अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। वालेकुम, मोहम्मद फैसल खान हमारा नाम है। हम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मस्जिद अजीज़िया के पास हमने एक एहतजाज किया जिसका मकसद ये था कि जो रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर वक्फ के ऊपर बिल पास किया गया उस पर हमने एहतजाज किया। हमको उससे पूरे मुसलमानों को, पूरी उम्मत को उससे कुछ शदीद शिकायतें हैं और मुसलमान नहीं चाहते कि आप मुसलमानों के इस वक्फ के अंदर और शरीयत के अंदर मदाखिलत करें। तो कुछ चीज़ों को लेकर हमने यहाँ पर एहतजाज किया और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस एहतजाज में शिरकत की। हमारा यकीन है, हमारा ये ईमान है कि वक्फ की जो ज़मीन है वो अल्लाह के लिए वक्फ की गई है और वो ताक़यामत अल्लाह ताला के लिए वक्फ हो चुकी। उस पर अब किसी का हक़ नहीं है। मुसलमान भी हैं तो मुसलमान सिर्फ उसकी हिफाजत करने वाले हैं और उसके कस्टोडियन हैं, ना ये कि वो उसके मालिक हैं। तो हमारी सबसे पहली हुकूमत से ये डिमांड है, हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जो क़ानून आपने पास किया है, मरकज़ी हुकूमत से हम पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं और कहते हैं कि जो क़ानून आप पास किए हैं आप उस क़ानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि उम्मत मुसलमान, इस देश का मुस्लिम, इस मुल्क का मुस्लिम इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं। आपने जो बिल के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं वो बिल के अमेंडमेंट्स खुद इस बात की गवाही देते हैं कि आप मुसलमानों का भला नहीं चाहते। आपने जो अमेंडमेंट्स किए हैं उसमें एक अमेंडमेंट ये है कि आप सारे इख्तियारात कलेक्टर को देना चाहते हैं। आपने जो अमेंडमेंट्स किए हैं उसमें एक अमेंडमेंट ये भी है कि आप वफ़ की कमेटी के अंदर गैर मुस्लिम लोगों को शरीक करना चाहते हैं। और मुख्तलिफ जो अमेंडमेंट्स आपने किए हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि आप खैर ख्वाह नहीं है मुसलमानों के, बल्कि आप तो इसके ज़रिए से अपनी गंदी सियासत खेलना चाहते हैं और इसका आपको हम मौका नहीं देंगे। हम पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं। आज मस्जिद अजीज़िया से निज़ाम हैदराबाद के मुसलमानों के ज़रिए से ये बात हम सेंट्रल हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप ये जो क़ानून आपने पास किया है उस क़ानून को आप वापस ले लीजिए और इस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक आप इस क़ानून को वापस नहीं लेंगे।